हेलो, स्क्रीन शेयर आपके साथ। जी, स्क्रीन शेयर हो गई है। ओके जी, गुड। सो आज का जो टॉपिक है, और ये यहाँ पे जो मैंने रिकॉर्डिंग की है वो ठीक थी, साउंड वगैरह कोई इशू तो नहीं? फिर वो नहीं देखी, वीडियो नहीं देखी। अच्छा, चलिए ठीक है। मैं बस ये कि यहाँ से वो आवाज़ का मसला तो नहीं होता। अच्छा जी। ओके, सो और टॉपिक फॉर टुडे इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और ऑपरेटर को हम इसलिए ओवरलोड करेंगे बिकॉज वी वांट टू मेक इट लुक सिंपलर फॉर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स। आप जब दो वेरिएबल्स को ऐड करते हैं व्हेन दे आर ऑफ बेसिक टाइप्स लाइक इंटीजर लाइक फ्लोट, तो आप कहते हैं a plus b and that gives you the sum of a and b, because the operator knows it has implementation in the compiler how to deal with two variables when they are used with a plus operator। ठीक है, प्लस जो है या माइनस जो है वी कॉल देम ऑपरेटर्स, जिन वेरिएबल्स पे ये अप्लाई होता है वी कॉल देम ऑपरेंड्स। ठीक है, सो प्लस or minus is a binary operator. It needs and even at max two parameters or two operands। ठीक है, प्लस ऑपरेटर के लिए आपको दो ऑपरेंड्स चाहिए। इस तरह से we have a ternary operator that is hardly being used, जो मैंने आपको कहा था कि it is basically the shrinked version of if else statement। और कुछ हमारे पास unary operators हैं, for example increment and decrement। तो इस तरह से ये सारे operators जो हैं they only operate with basic types because they have definition for how to deal with those data types। ठीक है, उसके अंदर ये ऑलरेडी डिफाइंड है कि जब दो फ्लोट वैल्यूज को ऐड करना हो तो क्या करना है मैंने, जब उनके बीच में प्लस का साइन यूज हो। But if I have complex types like cars, like boxes, like student, like course, the compiler does not know what to do with the plus operator between two courses, between two students। ठीक है, उसके लिए उसके पास डेफिनेशन ही नहीं, क्योंकि स्टूडेंट तो अभी आपने एक टाइप इंट्रोड्यूस की है तो उसको नहीं पता कि मैंने प्लस ऑपरेटर के साथ क्या करना है। उसकी जगह हम मेंबर फंक्शंस बना सकते हैं जस्ट लाइक वी डू विद द क्लासेस, और वो फंक्शंस भी हमारे लिए उसी तरह का काम कर सकते हैं। बट द ओनली डिफरेंस इज कि वो विजुअली इतने अपीलिंग नहीं होते। सो वी विल स्टार्ट विद द बेसिक टाइप कि किस तरह से हम ये काम कर सकते हैं, एंड देन वी विल स्विच टू ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है जी। ओके, so if we have this main body and we introduce a class, let's say we name it student, and student class has some private data members that are int registration number. Let's say we just take it as an integer value, and then we have string name, uh, float GPA, and int semester। ठीक हो गया? So this is what we have for a student, and when we define a student, registration number निकाल देते हैं, फिर हमें देखना पड़ेगा मैच करता है और नहीं करता। दैट इजंट अ हेडेक फॉर टुडे। तो हम एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लेते हैं स्टूडेंट। Name is going to be an empty string, and GPA is going to be 0.0 initially, and semester is going to be initialized with 1। Okay, so this is our basic default constructor, and let's say if you want to um, let's define a print function for student। Okay, so the print function is going to have the return type of a void। हम इसे कुछ पास नहीं कर रहे, ये सिर्फ जो है सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट कर देगा। सो सी आउट नेम, नेम सी आउट
GPA okay, so this function is just going to print whatever the state of an object is. अब हम क्या करेंगे? We'll create an object of type student. Let's call it S. And now if we say s dot print, so it's going to print everything that we have got for student object, और ये student का जो object है, this is basically going to have the default values. ठीक है, जो हमने उसके लिए सेट की थी. हम getter setters बना के इन values को modify कर सकते हैं, but our point for today is basically what if we want to have multiple students. Let's say we have S1 and S2 as two students, and we want to perform a kind of operation where if we say S1 plus S2, and that basically adds the semesters of these two students, or maybe just adds their GPA. अब कंपाइलर के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो खुद से डिसाइड करे कि प्लस ऑपरेटर में क्या करना है. ठीक है, क्योंकि प्लस का मतलब क्या ये भी है कि दोनों के नाम भी कनकेट कर दो, या सिर्फ जीपीए को ऐड करो, या जीपीए और सेमेस्टर दोनों को करो. सो दैट्स व्हाई कंपाइलर आपको जो डिफॉल्ट जो ऑपरेटर्स हैं वो कस्टम टाइप जो है उस पे आपको एरर देगा, क्योंकि दे आर नॉट डिफाइंड फॉर सच ऑपरेशन. उन्हें पता नहीं है कि दो स्टूडेंट्स को कैसे ऐड करना है, दो कोर्सेज को कैसे ऐड करना है, एक स्टूडेंट से दूसरे को कैसे सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, तो they are not defined for such complex types and therefore we need to define them. अच्छा, अगर हम ये काम ना करें, ऑपरेटर को ओवरलोड ना करें, तो उसके अलावा हमारे पास दूसरा रास्ता क्या है? हम एक सिंपल फंक्शन बना देंगे और उस फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा स्टूडेंट. ठीक है, और स्टूडेंट का नाम जो यहाँ पे हम फंक्शन का नाम रख लेते हैं ऐड या मे बी ऐड स्टूडेंट, और इसको क्या पास करेंगे? हमने बात की थी प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेटर. ठीक है, तो दो चीजें ही प्लस करेगा. तो एक जो है वो हमारा करंट ऑब्जेक्ट होगा. करंट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? करंट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसपे आप फंक्शन कॉल करते हैं. ठीक है, ये फंक्शन में जिस ऑब्जेक्ट पे कॉल करूंगा वो मेरा करंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जिसको हम दिस ऑपरेटर से यूज करते हैं, आगे एक्सेस करते हैं. और एक और मुझे स्टूडेंट चाहिए होगा, वो मैं यहाँ पे पैरामीटर के तौर पे पास कर दूंगा. ठीक है, यहाँ पे कोई भी ये जो भी स्टूडेंट मैं पास करूंगा उसकी कॉपी बन जाएगी एस के अंदर. अब यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि एक नया ऑब्जेक्ट बनाए स्टूडेंट. ठीक है, इसको मैं टेम्प बेशक कह दूं, इट्स अ टेम्पररी ऑब्जेक्ट. ठीक है, और टेम्प डॉट जीपीए इज इक्वल टू दिस जीपीए. कौन सा? करंट ऑब्जेक्ट का जीपीए प्लस एस का जीपीए, जो मैं पैरामीटर में पास कर रहा हूँ, जिसपे फंक्शन कॉल करूँ, दोनों का ऐड करके इसको असाइन कर दो. और टेम्प डॉट सेमेस्टर इज इक्वल टू दिस. और आप इनमें से कोई एक काम भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू के प्लस को आप किस तरह से यूटिलाइज करना चाहते हैं. प्लस एस डॉट सेमेस्टर, दोनों का प्लस आ गया. और ये अब काम करने के लिए हम क्या करेंगे? अब हम ये काम करने के लिए, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, स्टूडेंट S3, हमें एक तीसरा ऑब्जेक्ट चाहिए बिकॉज इट्स एडिंग टू स्टूडेंट्स एंड इट्स रिटर्निंग अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप स्टूडेंट. वो हम S3 में को असाइन कर देंगे, और यहाँ पे हम फंक्शन कॉल करेंगे S1 डॉट S1 इज गोइंग टू बिकम करंट ऑब्जेक्ट. अगर मैं इसको S2 कर दूं तो S2 करंट बन जाएगा. ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, S2 को करंट कर दें, ऐड स्टूडेंट, और S1 इसको पास कर दें, S1 जाके S को असाइन हो जाएगा. ठीक है, उसकी लोकल कॉपी S में बन जाएगी. तो ये क्या करेगा? दिस इज गोइंग टू डू एग्जैक्टली द सेम दैट आई वांट टू डू विद अ प्लस ऑपरेटर. दो स्टूडेंट्स की वैल्यूज ऐड करेगा, और वो मैं यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकता हूँ थ्रू S3 डॉट प्रिंट. इस फंक्शन के साथ मैं चेक कर सकता हूँ कि क्या वाकई वो काम हो रहा है कि नहीं. अच्छा जी, मसला कहाँ पे आ रहा है? अच्छा, हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे. रिटर्न टेम्प, ठीक हो गया. जीपीए 0 थी, वो ऐड होके 0 ही रहेगी. सेमेस्टर 1 था, वो ऐड होके 2 हो गया. ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने एग्जैक्टली वही काम किया जो हम इन पर्पस चाहते थे, कि दो स्टूडेंट्स का जो है सेमेस्टर और जीपीए ऐड हो और तीसरे स्टूडेंट को असाइन हो जाए.
सो इन प्रिंसिपल हम जो करना चाहते थे वो हम अचीव कर चुके हैं, बट दिस डजंट लुक अपीलिंग। ठीक है, इसकी जो विजुअलाइजेशन है इस चीज की, वो इतनी अच्छी नहीं है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से हम बेसिक टाइप्स के साथ करते हैं, फॉर एग्जांपल S1 + S2 करें और हमारा काम जो है वो वही तरह हो जाए जो हमें इस फंक्शन के अंदर करना है, वो वही काम हो। लेकिन ये मैथमेटिकली ज्यादा ज्यादा अपीलिंग है, विजुअली ज्यादा इसकी कोड रीडेबिलिटी ज्यादा है कि हम बजाय इसके किस तरह के फंक्शन लिखें और फिर फंक्शंस के नाम याद रखें, हम अगर प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करें, जिस तरह से वो इंटीजर को प्लस करता है, फ्लोट को करता है, वो ये काम इनके साथ भी करें, तो दैट इज गोइंग टू help us by not remembering the name of the function but just using the operator itself। ठीक है, तो उसके लिए हम ये काम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को फिलहाल रहने देते हैं, अदरवाइज फिर हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट इट्स गोइंग टू रिटर्न स्टूडेंट ऑपरेटर प्लस। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द नेम ऑफ द फंक्शन। और फिर हम क्या करेंगे, ऑपरेटर प्लस को कॉल नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्लस ऑपरेटर को यूज करेंगे। सो दिस ऑपरेटर इज बेसिकली अ कीवर्ड दैट इज लेटिंग द कंपाइलर नो के उसके बाद का जो ऑपरेटर है, ये फंक्शन उसको इस फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर जो भी होगा, वो बेसिकली हम क्या करें, इस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग आपने किया ना, तो जैसे ये ऑपरेटर इंटीजर के लिए काम करता है, हम इसको ओवरलोड करके एक एडिड काम इसको देते हैं कि अब आपने स्टूडेंट को भी इस तरह से ऐड करना है। ठीक है, काम हमने वही करना है, स्टूडेंट एस, कोई हमें यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट टेम्प, टेम्प डॉट, हाँ ठीक हो गया। सो दिस इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम। और इस दफा हम क्या करेंगे, हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट ऐसे होता है ना, हाँ इससे होता है। अच्छा, और हम चाहते थे स्टूडेंट S3 S1 + S2। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम S3 को प्रिंट करते हैं, लेट्स सी व्हाट इट डज। ठीक है, एंड इट्स डूइंग एग्जैक्टली द सेम जॉब। So basically what we have done is that we have provided the plus operator with an added functionality, with an added definition, जो हमने इस फंक्शन की बॉडी के तौर पे यहाँ पे लिखा है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स हों स्टूडेंट टाइप के और मैं प्लस का ऑपरेटर यूज करूँ, तो तुमने ये वाला, ये जो बॉडी यहाँ पे लिखी हुई है, ये कोड एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो वो बेसिकली हमें वही कर रहा है, S1 को भी प्लस कर रहा है, S2 को प्लस कर रहा है, और S1 और S2 को मॉडिफाई नहीं कर रहा। S1 और S2 की वैल्यूज वही रहेंगी, जो नई वैल्यू आएगी वो रिटर्न कर रहा है वहां पे, जिसको हम असाइन कर रहे हैं S3 में। ठीक है, इस तरह से हम माइनस ऑपरेटर, मॉड ऑपरेटर, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, किसी भी ऑपरेटर को आप जो है ओवरलोड कर सकते हैं। ठीक है, एंड द मैकेनिज्म इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम। अगर आपने माइनस को करना है तो ये जहां पे हम बॉडी के अंदर प्लस लगा रहे हैं, ये माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन के लिए मल्टीप्लीकेशन का वो होगा। तो इस तरह से आप ये सारे ऑपरेटर्स ओवरलोड कर सकते हैं। ठीक है, करंट S1 और S2 जो है वो, इसको हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, void set GPA। ठीक है, और ये फंक्शन क्या करेगा, इसको हम जो भी वेरिएबल पास करेंगे, ये करेगा this dot this GPA is equal to float a, और f हम इसको असाइन कर देंगे। ठीक है, अब हम ये करते हैं कि S1 डॉट क्या था, सेट GPA 2.2। ठीक है, काफी है। अच्छा, और अब हम क्या करेंगे, इसकी बॉडी के अंदर हम इसको कहेंगे सी आउट दिस GPA। ठीक है, पता चल जाएगा कौन सा करंट ऑब्जेक्ट है। 2.2, S1 इज करंट ऑब्जेक्ट। ठीक है,
हमने यहाँ पे S1 की जीपीए को मॉडिफाई किया और यहाँ पे करंट ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया। सो S1 दोनों में जो पहला है दैट इज द करंट ऑब्जेक्ट एंड द अदर इज द ऑब्जेक्ट दैट इज पास्ट। ठीक है। अच्छा, तो अब अगर हमने यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, लेट्स से वी वांट टू रीडिफाइन, और ये फंक्शन हमें चाहिए नहीं, आप अगर रखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज की जरूरत नहीं है। प्लस ऑपरेटर अब आपके लिए वही काम कर रहा है जो पहले ये कर रहा है। हाँ, अब ये है कि लेट्स से इफ यू वांट टू ओवरलोड यूनरी ऑपरेटर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे। हाँ, वो स्टूडेंट ये रिटर्न करेगा। ऑपरेटर कौन सा करना है, हमने प्लस प्लस को करना है। कुछ पास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक ऑपरेटर के ऑपरेंड के ऊपर कॉल होगा, तो वो एक ऑपरेंड इसका करंट हो जाएगा, तो किसी और को दूसरे को पास करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर दिस सेमेस्टर, लेट से हम हमारे ख्याल में इंक्रीमेंट के लिए अंदर क्या होना चाहिए, जो सेमेस्टर है उसको +1 होना चाहिए। ठीक है, बाकी चीजें वैसे ही रहेंगी। और उसके लिए हम एक कंडीशन भी लगाते हैं कि इफ सेमेस्टर इज लेस देन 10, लेट से ये हमारी मैक्सिमम वो है, लिमिट है फॉर द सेमेस्टर वैल्यू, इट कैन नॉट एक्सीड 10। सो हम कोई कंडीशन वगैरह भी लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेगा, इफ द वैल्यू इज लेस देन 10 ये उसको इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, एंड हम, अच्छा, लेट्स जस्ट ट्राई इट लाइक दिस। ठीक है, लेट्स सी के हम कुछ रिटर्न नहीं करते, लेट्स सी व्हाट इट डज। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी आउट यूनरी ऑपरेटर फॉर लोडिंग। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको कहते हैं S2 प्लस, इनफैक्ट इट्स प्लस प्लस S2, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट आपको पता है। ठीक है, सो जो हमने किया है दैट इज अ पोस्ट इंक्रीमेंट, आई थिंक आगे कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, S2 डॉट प्रिंट। ठीक है, राइट। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बाद हमने क्या किया, सेमेस्टर जो है वो आप देखिए उसकी वैल्यू 2 आ रही है। इनफैक्ट लेट्स जस्ट डू दिस मल्टीपल टाइम्स, प्लस प्लस S2 प्लस प्लस S2 and the semester keeps on incrementing. So basically हमने क्या किया, we have overloaded the increment operator। ठीक है, और हमने क्या किया, उसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड किया है फॉर प्री इंक्रीमेंटेशन। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट में आपके पास जो सिंबल साइंस है ऑपरेटर ये पहले आएगा, पोस्ट में बाद में आएगा। ठीक है, हमने जो डेफिनेशन दी है इसमें दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन इज बीइंग यूज्ड फॉर, ये वाली नहीं, ये वाली, दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन इज बीइंग यूज्ड फॉर ओवरलोडिंग द ऑपरेटर प्री कंडीशन। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट को ओवरलोड करने के लिए यूज होता है। हम ये भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रीड करके हम उसी को मॉडिफाई कर रहे हैं, हम ये भी कर सकते हैं कि इसकी कॉपी बने, ऑल्दो उसकी कोई मुझे खास जरूरत नजर नहीं आती, बट अगर हम ऐसे करें उसमें भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। वी हैव अ टेम्पररी वेरिएबल। ठीक है, और ये काम नहीं करते उसमें, फिर अभी हमें डिस्क को सारा टेम्प में कॉपी करना पड़ेगा, फिर उसको +1 करना पड़ेगा, फिर उसको रिटर्न करना पड़ेगा। सो वो भी एक तरीका है, बट दिस इज अ लॉट सिंपलर। ठीक है, कि डायरेक्ट, वही तो मैं बता रहा हूँ, दिस ऑपरेटर करंट ऑब्जेक्ट के अंदर ही मॉडिफाई कर रहा है। आप ये कर सकते हैं जो मैं अभी करने लगा था, कि आप इसकी कॉपी बनाएं, उसको मॉडिफाई करें, उसको रिटर्न करें, और वो जब रिटर्न होगा वो उधर असाइन हो जाएगा, सो दैट वुड डू द सेम जॉब, लेकिन कोड आपका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्या मतलब, हाँ, ये मेंबर फंक्शन है इस क्लास का, ये कैसे किसी और के लिए यूज होगा, तो पब्लिक है ना, पब्लिक इसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स पे यूज होगा, बाहर से यूज होगा लेकिन इसी के ऑब्जेक्ट्स पे यूज होगा, इसका मेंबर फंक्शन है, ये किसी और क्लास के लिए यूज नहीं हो सकता।
हम क्लासेस इसलिए बना रहे थे, हम स्ट्रक्चर से जो इतना सफर करके आए थे वो इसलिए कि हर क्लास के पास अपने मेंबर फंक्शंस हो। तो आप उसके लिए अलग से ओवरलोड करेंगे जो उसका मेंबर फंक्शन होगा। अगर मेरे पास एक कोर्स का क्लास है और उसमें मेरे पास प्लस ऑपरेटर का मतलब ये है कि उस कोर्स के जो कोड है उसमें +1 हो जाए, उस कोर्स का जो लेट सेक्रेटार है उसमें +1 हो जाए, डिक्रीमेंट का मतलब ये उसमें -1 हो जाए, तो मुझे इस ऑपरेटर को उसके लिए अलग से ओवरलोड करना पड़ेगा। अब जो हमने ओवरलोड किया है ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए काम करेगा, ये सारी क्लासेस के लिए नहीं काम करेगा। हर क्लास के अंदर इसका ओवरलोडेड वर्जन होगा तो ये उस क्लास के लिए काम करेगा। ठीक है। जितने आपके पास क्लासेस हैं, अगर आप सबके साथ ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज करना चाहते हैं तो आपने उनको सब क्लासेस के लिए रिडिफाइन करना होगा, उनको लिए ओवरलोड करना होगा। ठीक है। अच्छा, ये करंट जो हमने डेफिनेशन दी है दिस इज फॉर इंक्रीमेंट। अब हमारे पास यहाँ पे एक मसला है कि अगर मुझे ये प्री इंक्रीमेंट नहीं चाहिए, मुझे पोस्ट इंक्रीमेंट चाहिए। ठीक है। सो मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता क्योंकि यूनरी ऑपरेटर है, मैं दूसरा कोई चीज उसको पास भी नहीं कर सकता। और मैं चाहता हूँ कि ये मेरा इसके लिए काम ना करे, ये पोस्ट के लिए करे। सो देयर इज ऑलरेडी अ डेफिनेशन इन कंपाइलर, तो अगर आप वो वाला काम करेंगे तो कंपाइलर समझ जाएगा कि जो आपने डेफिनेशन लिखी है ये बेसिकली प्री के लिए नहीं है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए है। उसके लिए हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे एंट लगा दिए। उसने अपने लिए ये फर्क रखा है कि यूनरी ऑपरेटर में जो खाली होगा दैट वुड बी फॉर प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एंड इफ इट इज विद इंटीजर। अब वो देखिए वो ओवरलोडिंग जो है उसने वो प्री और पोस्ट में डिफरेंस रखने के लिए ऑपरेट जो फीचर ऑपरेटर्स हैं, पैरामीटर्स जो हम पास कर रहे हैं उसको डिफरेंट हो गया है। सो नाउ द कंपाइलर नोज कि अब ये प्री के लिए नहीं काम करेगा, अब ये पोस्ट के लिए करेगा। तो नाउ इफ वी, तो ये अब हमें एरर दे रहा है कि आपने डेफिनेशन लिखी है पोस्ट इंक्रीमेंट की और काम आप अप्लाई कर रहे हैं प्री इंक्रीमेंट। सो हमें लेट से दोनों चाहिए। हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको भी रख लेते हैं और पोस्ट के लिए भी इसको डिफाइन कर लेते हैं। सो हमें पोस्ट के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ कंपाइलर को इतना बताना है कि ये पोस्ट के लिए है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एंट लिखाना पड़ेगा ताकि वो प्री और पोस्ट के बीच में फर्क कर सके। अब मैं क्या करूंगा, इन सबको प्री इंक्रीमेंट से हटा के इसको S2++ 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 सारे मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट कर दिए। इनफैक्ट अगर मैं बीच में एक दो प्री भी यूज करूं, दोनों के फंक्शन अब हमारे पास हैं। इसको रन करें। सो नाउ बोथ प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट आर अवेलेबल बिकॉज वी हैव गॉट डेफिनेशंस फॉर बोथ ऑफ देम। अगर आप पैरामीटर के अंदर कुछ नहीं, आप देखिए वो इंटीजर हमने कोई वेरिएबल भी नहीं रखा उसके लिए, हमें चाहिए भी नहीं बॉडी के अंदर, वो सिर्फ इसलिए है कि बस वो प्री और पोस्ट के बीच में फर्क कर सके, हमें आगे उसकी कोई जरूरत नहीं है। सो दीज आर द टू डेफिनेशंस, एक प्री इंक्रीमेंट के लिए यूज हो रहा है, एक पोस्ट के लिए यूज हो रहा है। द सेम वे आप जो डिक्रीमेंट का ऑपरेटर है वो भी आप ओवरलोड कर सकते हैं, प्री के लिए भी कर सकते हैं, पोस्ट के लिए भी कर सकते हैं। द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द कोड इज गोइंग टू रिमेन द सेम, बस ये है कि ऑपरेटर का नाम आपने वहां पे चेंज कर लेना है और बॉडी के अंदर जहां पे हम प्लस कर रहे हैं वहां पे आप कुछ -1 कर देंगे। The same way we can subtract one object from another. आप ये कर सकते हैं कि let's say if we have got a chair and if you say chair 1 minus chair 2, तो वो क्या करे, chair 1 की लेंथ से 2 की लेंथ माइनस करे, वेट से वेट माइनस करे, हाइट से हाइट माइनस करे। सो इट्स बेसिकली अप टू यू कि आप किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं। आपकी अपनी मर्जी है कि आप प्लस ऑपरेटर से क्या करवाना चाहते हैं। इनफैक्ट आप उसको उल्टा कर लें, प्लस के अंदर माइनस का काम करें और माइनस के अंदर प्लस का काम करें। आपकी अपनी डेफिनेशन है, अब आप माइनस करेंगे तो वो दोनों को ऐड करेगा, और माइनस यूज करेंगे तो ऐड करेगा और प्लस यूज करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेगा। सो इट्स अप टू यू कि आप एग्जैक्टली किस तरह से इन ऑपरेटर्स को ओवरलोड करना चाहते हैं। जो भी आपने बॉडी लिखी है इट्स गोइंग टू डू एग्जैक्टली द सेम। ठीक हो गया। और कोई क्वेश्चंस हैं आपके? आपको लगता है कि आप बाकी उसके लिए कर लेंगे? आसान है ना। सिर्फ आपने ये ख्याल रखना है कि ऑपरेटर का कीवर्ड होगा और उसके बाद ऑपरेटर जो भी ओवरलोड करना है फिर वो आ जाएगा। और फिर आपने ये ख्याल करना है कि रिटर्न वगैरह आपने क्या करना है नहीं करना। पैरामीटर ये बाइनरी है तो एक पैरामीटर में पास होगा, यूनरी है तो उसमें जरूरत नहीं होगी, और यूनरी में प्री है तो उसके लिए कुछ पास करने की जरूरत नहीं, पोस्ट के अंदर आपको इंट डालना पड़ेगा। सिंबल आप अपना कहाँ से देंगे? कुछ साइंस जो है कुछ सिंबल्स वो ओवरलोड नहीं होते, वो यहाँ पे जो है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है द कीवर्ड। तो आप सारे ऑपरेटर्स को तो नहीं कर सकते लेकिन काफी सारों को कर सकते हैं।
ठीक है, तो आप बाकी भी ट्राई कर सकते हैं और वो ओवरलोड हो जाएंगे। आपने डॉलर की बात की, लेट्स ट्राई डॉलर। ठीक है, क्योंकि कुछ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन कुछ ऑपरेटर्स को ये हमें ओवरलोड करने की इजाज़त नहीं देता। हम यहाँ पे अगर कर लें डॉलर को, और फिर हम कहते हैं कि जब हम कहें ए डॉलर बी, तो आपने क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। लेट्स सी व्हाट इट डज। ठीक है, डॉलर को ओवरलोड नहीं करवा रहा। एक्सपेक्टेड कॉमा और दिस। ठीक है, इसको नहीं कर रहा। कोई और बताएं। ब्रैकेट भी नहीं करेगा वो, तो इसलिए फिर बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। अंडरस्कोर, वो भी शायद ना करे। ये कुछ रिजर्व्ड कैरेक्टर्स हैं, उनको नहीं करता। हाँ, हैश को भी नहीं करेगा, क्योंकि वो देखिए उसका वो स्ट्रक्चर बदल जाता है। इसको कर लेगा, क्योंकि वो कलर से अंदाजा हो रहा है कि शायद ये हो जाए। इनफैक्ट आप इसको नेगेशन के तौर पे ओवरलोड कर सकते हैं। इसको भी नहीं कर रहा। क्या? नहीं, उसी का कर रहा है। ये बेसिकली कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा है उसके बाद वहां पे, तो इसका ये समझ नहीं है कि यहाँ पे हम इसको ओवरलोड कर रहे हैं। तो इसको भी, असल में कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं कि जो किसी और मकसद के लिए अभी यूज हो रहे हैं, जैसे ब्रैकेट है, तो अगर आप उसको ओवरलोड यहाँ पे करेंगे तो वो, इसलिए ये सारे ऑपरेटर्स आपको अलाउ नहीं करता। एक लास्ट ट्राई कर देते हैं %। ये भी वो रेफरेंस के लिए यूज होता है, तो शायद ये भी हमें अलाउ ना करें। हो गया। ठीक है, और ये एग्जैक्टली वही काम कर रहा है। तो इस तरह से कुछ ऑपरेटर्स ओवरलोड होंगे, कुछ नहीं होंगे। सारे कुछ रिजर्व कीवर्ड्स जो हैं वो आपको अलाउ नहीं करता, क्योंकि उससे बाकी कोड की अंडरस्टैंडिंग जो है उसमें काफी सारे मसले आ जाते हैं। लेकिन ये जो बेसिक अर्थमेटिक के ऑपरेटर्स हैं जो हम मैथमेटिक्स के लिए यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल प्लस माइनस, लेस देन, ग्रेटर देन, असाइनमेंट, इक्वलिटी। आप इक्वलिटी वो भी कर सकते हैं ना, कि दो जो इक्वल साइन हम यूज करते हैं दो इंटीजर वगैरह को वेरी कंपेयर करने के लिए, आप उसको ओवरलोड करने के इसका मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पे इसको ओवरलोड करूँ कि नेम को नेम से मैच करो, जीपीए को जीपीए से करो, अगर मैच कर गए तो दैट इज अ मैच, अदरवाइज नो। और उस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे, हम बुलियन रिटर्न करेंगे। ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन के जो ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स जो कंपेयर करते हैं, उनकी आउटपुट हमेशा उनका, उनकी वैल्यू जो है वो बाइनरी में होनी चाहिए, यानी बुलियन होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, हाँ, जीरो मीन्स फॉल्स और वन मीन्स ट्रू, तो वो हमेशा ट्रू फॉल्स के केस को रिजॉल्व करना चाहिए। तो आप यहाँ पे बुल रख सकते हैं। आप जो है बहुत सारे जो दूसरे ऑपरेटर्स हैं, लेट से आप प्लस इक्वल टू को ओवरफ्लोड करना चाहते हैं। ठीक है, तो प्लस इक्वल टू जो है अब वो आपके लिए स्टूडेंट के लिए भी काम करेगा, वो कोर्स के लिए भी काम करेगा। आप लेस देन और इक्वल टू करना चाहते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू करना चाहते हैं, तो ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो आप यहाँ पे ओवरलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, हम अगर ये काम करें, ऑल्दो हम एग्जैक्टली ये काम नहीं कर रहे। प्लस इक्वल टू का मतलब ये है कि ये अभी अगर हम इसको ओवरलोड करें तो हमें क्या करना पड़ेगा प्लस इक्वल टू के लिए। पहले मुझे ये बताएं, रिटर्न टाइप का क्या करना पड़ेगा। तो ऑपरेंड्स दो ही हैं, लेकिन उन दो में से एक को मॉडिफाई कर रहा है। और किसको मॉडिफाई करता है, जो करंट है उसको, क्योंकि जो लेफ्ट साइड पे आपने देखा, लेफ्ट साइड वाला करंट था, और प्लस इक्वल टू को अगर आप इंटीजर फ्लोट के लिए देखें तो वो भी लेफ्ट वाले को मॉडिफाई करता है। तो हम उस डेफिनेशन को चेंज नहीं करेंगे। तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि हमें कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने करंट ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो ये हम हटा देते हैं, और हम कहते हैं कि दिस की जो जीपीए है और दिस का जो सेमेस्टर है, उसके अंदर क्या करना है, प्लस इक्वल टू, क्योंकि जीपीए जो फ्लोट है ना उसके अंदर तो हम प्लस इक्वल टू का सिंबल यूज कर सकते हैं। प्लस इक्वल टू क्या करे उसमें, एस डॉट जीपीए करे, और इसके अंदर प्लस इक्वल टू क्या करे, एस सेमेस्टर। एस सेमेस्टर इंटीजर है, उसके लिए हम ये सिंबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि दिस जीपीए इज इक्वल टू दिस जीपीए प्लस, वो वाला वर्जन भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन दिस इज द सिंपलर फॉर्म।
अब हम क्या करेंगे, वी वुड जस्ट रिमूव दिस, हमें किसी को अंदर कैच करने की जरूरत नहीं है, प्लस इक्वल टू S2। और अब हमें हमारे पास यहाँ पे अगर हम S1 को प्रिंट करें, ठीक है ना, S1 के अंदर मॉडिफिकेशन आएगी, सेमेस्टर S2, ठीक है। और जीपीए भी 2.2 हो गई है इनफैक्ट। वो हम ऐसा करते हैं कि S2 की जीपीए भी सेट कर देते हैं ताकि ये चीज़ और क्लियर हो जाए। जीपीए 3.3 हो गई है, ठीक है, सेमेस्टर दोनों का 2 हो गया है। सो उसी तरह से प्लस इक्वल टू ऑपरेटर काम कर रहा है जैसे हम दूसरे बेसिक मैथ के जो है नंबर्स के साथ यूज करते हैं। ठीक हो गया जी, हो जाएगा इम्प्लीमेंट। अच्छा, आप जो ऑनलाइन है आप लोगों को समझ आ रही है? हेलो, ओके गुड हमजा। बाकी लोगों को क्लियर है सारा? हमजा जो ऑनलाइन है इनकी अटेंडेंस मुझे ईमेल कर दें।